پر اسرار اور مافوقل فطرت واقعات، سچائی کا پرستار اور قوت ایمان کی پختگی کا مالک شوکت حسین، جگدوش طلسماتی دنیا کا سب سے بڑا اور منفی کردار، کالی باؤلی نامی طلسماتی سرزمین پر ہونے والے انوکھے اور پر اسرار واقعات قارئین کے لیے ایک انوکھی طلسم ہوش شربا سے کم نہیں۔ خیر و شر کے درمیان ہونے والی جنگ کے ناقابل یقین اور سنسی خیز واقعات کا سنگم، کھنڈر۔ اس گورکھ دھندے میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر اللہ کا شکر تھا میری جان بچ گئی۔ دودھ پینے کے بعد میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ دھوپ اب کافی پھیل چکی تھی اور سورج بھی خاصا اونچا ہو گیا تھا۔ میرے سر پہ آج ہی کمال شاہ بابا سے ملنے کی دھن سوار تھی، اس لیے اب میں تیز تیز پیڈل مارتا سائیکل دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت و حوصلے مستقل مزاجی کے ساتھ جنگل بھی پار کر لیا تو سامنے مجھے ایک میدان نظر آیا اور پھر دور ہی سے مجھے وہ اونچا سا ٹبا دکھائی دے گیا۔ تیز سائیکل چلانے سے میرا دم بھی بہت پھول چکا تھا، مگر منزل کو قریب دیکھ کر میں سائیکل بھگاتا ہوا ٹبے کے قریب پہنچ گیا۔ سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر کے میں ٹبے پر چڑھنے لگا۔ سامنے گارے مٹی کی کچی چہار دیواری سی تھی، اس کے وسط میں مجھے ایک قبر سی دکھائی دی جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مڑی ہوئی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اپنی پھولی ہوئی سانسیں ذرا بحال کی، پھر اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مڑی کی طرف بڑھا۔ مڑی پر بوسیدہ سا ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں قریب جا کر ذرا متزبل سا ہو کر ایک کھڑا ہوا تو اچانک اندر سے پرجلال آواز ابھری، اندر آجا بچے، ہم تیری ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس آواز پر میں چونکا اور ہمت کر کے آگے بڑھا، پھر ٹاٹ آہستگی سے اٹھا کر اندر آ گیا۔ سامنے کچے فرش پر بچھے مرگ چھالا پر ایک ننگا دھڑنگ بارش درویش تھا بزرگ، آنکھیں موندے آندھے کنول کے آسن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوپری بدن نیم برہنہ سا تھا، نیچے لنگی تھی، دائیں ہاتھ میں تسبیح اور چہرے کے گرد نورانی ہالہ سا بنا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر انہوں نے مجھے دیکھا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں بالآخر کمال شاہ بابا کے پاس پہنچ چکا تھا، مگر میں اس کی بات پر کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا چونکا ضرور تھا۔ آپ کمال بابا شاہ ہی ہیں؟ میں نے ہولے سے ازراہ احترام پوچھا۔ ہاں، ہم بابا کمال شاہ ہیں، اور ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بابا کمال شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ میں نے پھر انہیں ساری تفصیلات بتا ڈالی، اپنے خواب سے لے کر سوہنی کے بارے میں، پھر جگدوش اور رانی کے بارے میں، اور یہ ساری باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کا نورانی چہرہ اب جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ معمول پر آ گیا، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میں اس کے قریب سرک آیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے میرے کاندھا تھپتھپایا۔ شاباش بیٹا، ہم تیرے اس عظیم نیک مقصد میں سچے ارادے سے بہت خوش ہوئے۔ یہ کہہ کر اس نے قریب پڑی اپنی بوسیدہ سی گڈری میں سے ایک تعویذ نکالا اور میرے دائیں بازو کی آستین اٹھا کر باندھ دیا۔ بابا، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور جب تک مجھے اس سارے پرسرار کھیل کی اصلیت کا علم نہ ہوگا میں اس مردود شیطان جگدوش کا خاتمہ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے بالآخر اپنا مطمع نظر اسے بتایا۔ وہ زیر لب آنکھیں موندے کچھ بدبداتے رہے، پھر انہوں نے مجھ پر ایک پھونک ماری اور آنکھیں کھول دی۔ ہاں، ہم تجھے ساری بات بتاتے ہیں، سنو، وہ بولے، اور میں ہما تن گوش برا آواز ہو گیا۔ میں بغور بابا کمال شاہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے بارش چہرے پر پہلی بار مجھے عجیب سے الجھے ہوئے تاثرات کا جال سا بنتا ہوا نظر آنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بتاتے ہوئے کسی بے نام سی الجھن یا پریشانی کا شکار ہوں۔ پھر چند ثانیوں کے بعد ان کے ہونٹوں پر جنبش ابھری اور وہ بولے، بچے، کاش میں اس مردود جگدوش کے بارے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ میرے نیک بچے، حقیقت یہی ہے کہ میں خود بھی پوری طرح جگدوش کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس مجھے اپنے مرشد کے ذریعے صرف ایک ایسے شیطان کا خواب میں اشارہ ملتا تھا۔ منحوس گہرائیوں سے ایک شیطان مردود کا ایک شتونگڑا جگدوش اپنے کالے کرتوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہماری پاک دھرتی پہ قدم رکھنے والا ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا ایک آنکھ والا خوفناک سر ہے۔ بابا کمال شاہ اتنا کہہ کر ذرا تھما،
मैं मबहूस सा उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो लम्हा भर के बाद दोबारा कहना शुरू हुआ, मरदूद शैतान का शितोंगड़ा जगदूश मनहूस गहराइयों से अपने कौन से काले करतूतों को पूरा करने के मकसद से इस पाक धरती में आया है। अफसोस ये पुर इसरार राज मैं बावजूद कोशिश और तवील कड़ी रियादत के बावजूद अब तक नहीं जान सका हूँ। उसे हमारे मुर्शिद पीर टिब्बे वाले बाबा ने भी इशारों ही से हमें समझाने की कोशिश की है, ताहम उन्होंने इस शैतांगड़े जगदोश के शर से महफूज रहने के लिए इमाम जामन के रोज़े पर चंद कुरानी आयात पढ़कर दम करने का तरीका बताया, और जो भी इस शैतांगड़े जगदोश के शर की लपेट में आ चुका हो ये उसका असर ज़ायल कर डालेगा। यह कहकर बाबा कमाल शाह ने मुझे एक और तवीज़ दिया जो रुपये के सिक्के के बराबर गोल था। उस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। मैंने अज़हद एहतराम से वो तवीज़ भी रख लिया। तुमने उस जगदेश को नाबूद करने का जो बेड़ा उठाया है उस नेक मकसद से हमें खुशी हुई। बाबा वो तो सब ठीक है, मगर मुझे आखिर तो कुछ तो पता चले कि मैं जगदोश तक कैसे पहुंच पाऊं और उसका खात्मा भी कैसे करूंगा। मैंने कदरे परेशानी से पूछा। अल्लाह तेरी रहनुमाई खुद फरमाएगा। जिस तरह ख्वाब में तूने उस खंडर को देखा, बस बच्चे अब तू चला जा, इससे आगे हम तेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। ये कहकर बाबा कमाल शाह ने अपनी आंखें मूंद ली। वो जल्दी जल्दी तस्बीह के दाने रोलने लगे। उनके होंठ मुतहरक थे। मैं खामोशी से वापस पलट आया। सोचों में गुम टिब्बे से नीचे उतरा और साइकिल पर सवार होकर वापसी के लिए दरख्ते सफर बांधा। यूं तो बाबा कमाल शाह से मेरी मुलाकात इतनी नाकाम भी नहीं गई, लेकिन जगदोश के बारे में तफसील वो भी नहीं बता पाए थे। अगरचे उनके शर और काले मंत्रों वाले जादू से महफूज रहने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग तावीज़ मुझे दे डाले थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तशंगी बाकी थी। मैं मायूसनी अंदाज में सुस्त रवि से साइकिल चला रहा था और मेरे दिमाग में बाबा कमाल शाह की जगदोश से मुतल्लक गुफ्तगू गर्दिश कर रही थी जो बिल्कुल मबहम थी। बाबा कमाल शाह ने मनहूस गहराइयों का जिक्र किया था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये किधर वाक़या थी जहां से मरदूद शैतान का शैतांगड़ा जगदोश वारद हुआ था। इस बात से तो मैंने इतना अंदाजा लगा लिया कि जगदोश का असल ठिकाना भी वही मनहूस गहराइयां होंगी। क्या खबर वो पुर इसरार खंडर भी जहां उसने मासूम सोहनी को मुकीद कर रखा है उसी इलाके में हो। अगर फर्ज किया मैं उस मनहूस गहराइयों में पहुंचकर उतर जाता हूं तो फिर जगदोश से कैसे मुकाबला कर सकूंगा। गर्ज मेरा दिमाग दुखने लगा। मुझे जगदोश तक पहुंचने या उसे नाबूद करके सोहनी को वहां से बाहिफाजत निकाल लाने की कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। वो एक ख्याल था जो बिजली की सी तेजी से मेरे जहन में लपका था। यह ख्याल आते ही मेरे अंदर मायूसियों की धुंध छटने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरा काम हो जाएगा। बस जरा मेरे घर पहुंचने की देर थी। अब तो मेरे पूरे वजूद में उम्मीद की किरण फूट गई। उसी लिए मैंने साइकिल तेज रफ्तारी के साथ चलानी शुरू कर दी। मेरा चेहरा कामयाबी और उम्मीद के जोश से सुर्ख हो रहा था। मैं अब जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। मैं घर पहुंचते पहुंचते सह पहर हो चली थी। शुक्र था कि शाम गहरी नहीं हुई। मैं बहुत थक चुका था। मैं बाईसाइकिल समेत घर में दाखिल हुआ। एक कोने में साइकिल खड़ी की। ताया अभी तक दुकान से नहीं आए थे। ताई पड़ोस में गई हुई थी। ताया मगरिब के बाद ही दुकान से आते थे। रानी घर पर ही थी और वो जैसे मेरी ही मुंतज़िर थी। मुझे देखते ही वो लपक कर मेरी तरफ बढ़ी और बोली, शौके मिल आया बाबा कमाल शाह से। मुझे उसके पूछने के अंदाज से हैरत हुई, मगर मैं अब जरा चालाकी से काम लेना चाहता था, क्योंकि मेरे जहन में जगदोश के ठिकाने से मुतअल्लिक आगाही अब सिर्फ और सिर्फ रानी ही दे सकती थी। इसीलिए मैंने उससे जवाबन कहा, हाँ मिल तो आया हूँ। तो फिर उसने जगदोश के ठिकाने के बारे में तुझे क्या बताया? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब देते हुए उसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। वो परेशान से नजर आने लगी। मैंने उससे पूछा, रानी एक बात तो बता। हाँ पूछो, वो गुमसुम से लहजे में बोली। तो ये सब कैसे जानती है? क्या यही कि मैं बाबा कमाल शाह से मिलने गया था तो जगदोश के बारे में कैसे जानती है? शौके मुझसे ये सब ना पूछ, मैं तुझे नहीं बता सकती। आज तूने रोटी भी नहीं खाई होगी। अम्मा अब्बा को तो दोस्त की शादी का बहाना बनाकर गया था, इसीलिए अम्मा ने तेरी रोटी भी नहीं बनाई। मगर मुझे मालूम था कि तू किसी दावत खाने नहीं गया। चल अंदर कमरे में जाकर मुंह हाथ धोकर बैठ, मैं रोटी लाती हूँ तेरे लिए। ये कहकर वो रसोई की तरफ बढ़ गई। मैंने भी सरदस्ता दानिस्ता चुप सांध ली
खुरे पर जाकर मुंह हाथ धोया, फिर हाथ पूंजता हुआ अपने कमरे में आकर चारपाई पर बैठ गया। इतने में रानी रोटी का छाबा उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। मैंने अब उस हथेली का मुंह खुलवाने के लिए फौरन कैंचली बदली और नवाला तोड़कर मुंह में डाला तो वह मेरे सामने ही चारपाई पर बैठकर मुझे अल्लड़ मुट्यारन की तरह मोहब्बत से रोटी खाता तकने लगी। मैंने जबरन होंठों पे मुस्कुराहट समोते हुए उससे प्यार भरी हलावत से कहा, रानी हूँ, एक बात तो बता, पूछो, तू मेरा कितना ख्याल रखती है? किसी अपने का ही ख्याल तो रखा जाता है और तू गैर थोड़ी है। वो एक अदाई दिल रुबाई से बोली, हाँ ये तो है, आखिर को मैं तेरा चचाजाद हूँ। मैंने होले से कहा, सिर्फ चचाजाद? वो मखमूर सी निगाहों से मुझे देख कर बोली। तो फिर मैंने उसे शीशे में उतारने की गरज से आगे बढ़ने की राह दी। तो फिर क्या, तू मेरा सज्जन भी तो है, लेकिन तू तो पता नहीं क्यों मुझसे बैरी रहता है। बता क्या कमी है मुझ में? हसीन हूँ, जवान हूँ। वो अपने सारे नस्वानी गमजे अशवे के साथ बोली। मैंने हंसते हुए चालाकी से कहा, नहीं, मैं भला तुझसे बैरी क्यों होने लगा? तू वाकई बहुत खूबसूरत। मगर मैंने दानिस्ता थमा तो वो जैसे अपनी आंखों में अनगिनत हसीन ख्वाब सजाए यकदम बेचैनी से बोली, मगर क्या शौके, मगर ये कि तुझ पर किसी आसीब का साया जो है। मुझे तो लगता है कि कोई जिन झपट कर तुझ पर पहले से आशिक हो गया है। मैं ये कहते हुए उसके गुलनार पड़ते चेहरे की तरफ देखने लगा। मेरी बात पर वो यकदम परेशान सी हो गई। नहीं शौके, ऐसी बात नहीं है। ना बाबा, मुझे तो तुझसे डर लगता है। ऐसा ना हो कि मैं तुझसे शादी कर बैठूं और वो भूत मेरे गले पड़ जाए। मैंने उसे बेवकूफ बनते देखकर चाल चली तो वह यकदम खुशी से चिल्ला उठी, सच तू मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? फिर तू मुझे डांटता धधकारता क्यों रहता है हर वक्त? उसने बड़े नाजो अदा से शिकवा किया। ऐसे में उसके पूर्ण इशबाब सीने से दुपट्टा ढलका तो मैंने अपनी नजरें वहां जमा दी। उसने मेरी नजरों की बेबाकी की सिमत अपनी ठोड़ी सीने से लगाकर वहां झांका तो उसे अपने ही भरे भरे सीने की गोलाइयों की गुदाज और हैजान अंगेज लकीर नजर आ गई तो वह मेरी चोरी को समझ गई, मगर उसने ढांपने की कोशिश किए बगैर हैजान अंगेज लकीर को मजीद नुमाया करने के लिए मेरी तरफ झुकी और मेरा दिमाग सनसनाने लगा। मैंने यकदम अपनी नजरें मोड़ ली। उसमें मेरी हवस की बजाय चालाकी का दखल था। वो इस तरह क़यामत खेद अंदाज में झुके झुके मुझसे नशीले लहजे में बोली, बता ना, मैं तुझे अच्छी लगती हूँ ना, तो फिर मुझसे बेजार क्यों रहता है? दरअसल वो मैं तेरे साथ ही बचपन में खेल कर जवान हुआ था ना, इसीलिए तुझे मैं एक छोटी सी बच्ची ही समझा करता था। ये कहते हुए मैंने एक बार फिर जबरन उसके खुले गिरेबान में दोबारा बेबाकी से झांक कर जज्बात अंगेज लहजे में कहा, हालांकि मैं ऐसे आमियानापन को अच्छा नहीं समझता था, मगर ये सब जरूरी था उसे शीशे में उतारने के लिए। तो फिर अब भी क्या मैं तुझे बच्ची लगती हूँ? वो बेदस्तूर दावते नजारा देते हुए मखमूर निगाहों से मुझे देखकर मैनी खेत लहजे में बोली तो मैं यकदम अपनी बाछें फैलाए हुए बोला, नहीं, तू आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि तू पूरी जवान घोड़ी बन चुकी है। सच? तो फिर तू भी घोड़ा बन जाना। वो जल्दी से अजीब तरंग में बोली। मैं घबरा सा गया। झीमती हुई वह हंसी के साथ बोला, तू भी झल्ली है, भला मैं घोड़ा कैसे बन सकता हूँ? अभी मैंने इतना ही कहा था कि सहन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो यकदम सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ताई आ चुकी थी, मैं भी रोटी खा चुका था। रानी अपना सुर्ख पड़ता चेहरा लिए खाने के बर्तन उठाने लगी तो मैं जल्दी से उसके भरे भरे कोलों पर चुटकी भरकर बोला, फिर कब आएगी? वो जैसे खुशी से नहाल हो गई और फोहड़पन से बोली, अब इतना बेसब्रा भी ना बन। ये कहकर वो चली गई। मैंने सुख का सांस लिया और चारपाई पर दराज हो गया। रानी को अगरचे अपने गले पड़ाना खतरनाक था, मगर ये सब जरूरी था। वो हटेली इस तरह ही शीशे में उतर सकती थी। वो अपने तई में मुझे उल्लू बना रही थी और मैं उल्लू बनकर उसे उल्लू बल का गधी बनाने के चक्करों में था। मैं उससे मोहब्बत और प्यार का खेल खेल कर उसके मुंह से उगलवाना चाहता था कि आखिर वो उस मरदूद शैतान के शतुंगड़े जगदोश को कैसे जानती थी। नींद से सोहनी और मेरे जगदोश के खिलाफ अजाइम का किस तरह इल्म हुआ था। रात हुई तो रानी दोबारा नादल हो गई। हस्बे मामूल उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैं अंदर से घबराया क्योंकि उस दूध में ना जाने वो क्या घोल कर लाती थी कि जिसे पीते ही मेरा दिल बेइख्तियार रानी की तरफ खींचने सा लगता था। मगर मैंने भी इस बार पक्का तहैया कर लिया था
कि ये दूध नहीं पीऊंगा। ले ये दूध पी ले मेरे घोड़े। वो फिर फिसलने लगी। मैं अपनी नजरों में उसे के लिए मोहब्बत के समंदर मुआर्जन करते हुए मुस्कुराकर बोला, दूध तो पी लूंगा, ला इधर। ये कहकर मैंने उसे दूध का गिलास लिया और करीब धरी हुई छोटी सी तपाई पर रख दिया। वो जरा बेचैन हो गई और बोली, नहीं पहले ये दूध पी ले। मैंने उसका नर्मोगदाद हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर मजबूरन थोड़ी सी जसारत भी कर डाली और बोला, दूध भी पी लूंगा, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। जबरदस्ती पिलाएगी तो उल्टी आ जाएगी। कल भी ऐसा ही हुआ था, तू जबरदस्ती दूध पिला गई तो भी मुझे बाद में उल्टी आ गई थी। फिर वादा कर मेरे जाने के बाद पी लेगा। हाँ वादा। मैंने झूठा वादा किया और वो मुझमें नजर आने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर गहरे लहजे में बोली, शौके तू कब बात कर रहा है अम्मा अब्बा से? मैंने उसकी बात का मतलब समझने के बावजूद तजाहले आरफाना से काम लेते हुए अनजान भरकर पूछा, कैसी बात? वो तू भी झल्ला है पूरा। अपनी और मेरे ब्याह दी गल और केड़ी? अच्छा अब मैं, मगर वो जिन। मैंने खौफजदा नजरों से आने की एक्टिंग की तो वो झंझला कर बोली, ए तू जिन की जिल्लाट रखी है तो और क्या? पर भला तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी जगदोश नामी जादूगर से लड़ने के लिए बाबा कमाल शाह के पास आज मिलने गया था? मैंने झट मतलब की बात तो जुबान पर लाते हुए कहा और मेरी तावील पर उसके चेहरे के तासरात लम्हा भर को बदले। फिर वो मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोली, तू तो बड़ा डरपोक है, घोड़ा तो बहुत बहादुर होता है। हाँ खतरा भांप कर वो दौड़ता भी बहुत तेज है। मैंने भी हंसकर हंसी में उड़ाते हुए अदराहे तफन कहा और वो हंसने लगी। वो काफी फरबा होने लगी थी, मगर उसके फरबा माइल जिस्म में एक सनसी अमेज दिलकशी थी। मगर मेरे लिए उसमें कोई कशिश ना थी, क्योंकि मेरे सनम खाने दिल में एक ही सूरत सजी हुई थी और वो थी सोहनी की, मन मोहनी सोहनी की। ताहम मैंने फौरन संजीदा होते हुए मतलब की बात पर आकर बोला, रानी मैं सही कह रहा हूँ, मुझे वाकई जिन्नों भूतों से बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो कि तेरा आशिक जिन मेरा बैरी हो जाए। नहीं, वो मेरा दोस्त है। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि वह तुझे कुछ नहीं कहेगा। रानी ने मुस्तकिम लहजे में कहा। मैं बदस्तूर अपनी अदाकारी पर अड़ा रहा। मुझे तो तुझसे भी डर लगा है। जिन्नों भूतों से तेरी दोस्ती होने लगी है तो तू समझता क्यों नहीं? आखिर अशोके वो जिच होकर बोली, और मैं चाहता भी यही था कि उसे इस कदर जिच कर डालूं कि वह बेइख्तियार मुझे वह सब कुछ बताने पर माइल वे बेरिजामंद हो जाए जो मैं उसे चलतरबाजी से उगलवाना चाहता था। मगर वो भी एक इकाइयां थी। मेरी तरफ पुरचकीक निगाहों से घूरते हुए बोली, वे शौकिया ज्यादा बनने की कोशिश ना कर। अगर तू जिन्नों भूतों से इतना ही डरता है तो फिर जगदोश जैसे इतने बड़े जादूगर से क्यों लड़ना चाहता है? और फिर वो भी सोहनी जिसे तू उसके चुंगल से छुड़ाने का इरादा रखता है। अब मेरे दिच होने की बारी थी, इसलिए मैंने भी जज के बगैर बिला तवक्कुफ और तामल कहा, देख रानी, सोहनी महज एक ख्वाब है जो महज एक पुर इसरार खंडर में दिखाई देती आ रही है। वहीं मैंने एक आंख वाले जानवर को भी देखा था जो ख्वाब पिछले कई दिनों से मुझे लगातार आ रहे हैं। भला ख्वाब का हकीकत से क्या तल्लुक? मगर मैं जरूर बेचैन था, और ये बेचैनी किसी और जज्बे के तहत नहीं, बल्कि ये एक मेरे लिए परेशान कुन बेचैनी है जिसका मैं खोज लगाना चाहता था। इसलिए मैं बाबा कमाल शाह से आज मिलने गया था, क्योंकि गांव में किसी से मैंने सुना था कि बाबा कमाल शाह ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। मगर जब मैंने उनसे मिलकर अपना ख्वाब बयान किया तो उन्होंने हंसी में मेरी बात उड़ाते हुए बताया कि मेरे इस ख्वाब की कोई हैसियत नहीं। पेट की खराबी या बदहजमी से भी ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं जिनका सिरे से कोई हकीकत नहीं होती। मैंने अपनी तरफ से एक झूठ घड़ते हुए बड़ी सराहत के साथ रानी को बताया तो उसके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श तमनानियत बिखर गई और फिर वो बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब झूठ है। नहीं रानी, बस मेरे दिल में एक फांस अटक गई है। मैं चाहता हूँ कि सच सच मुझे बता दे, और तू जानती है क्योंकि तुझे भी जन्नाती दौरे पड़ते रहते हैं। देख रानी, महज तसल्ली की खातिर बता दे ताकि मेरा दिल भी मुतमिन हो जाए। अगर ये सब सच है तो मैं चुप काहो होकर बैठ रहूंगा और तुझसे शादी भी कर लूंगा। मैंने उसे लाइन पर लाने की गर्ज से उसकी मिन्नत की। मैंने देखा कि मेरी सीर हासिल गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को पुरसोट सी खामोशी छा गई। मैंने लोहा गर्म जानकर आखिरी चोट लगाई और बड़ी मोहब्बत से रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब बैठाकर बड़े रिसान से दोबारा बोला, रानी, क्या तू मेरी खातिर इतना भी नहीं बता सकती? देख, मैं तुझे अब तुझसे कितना प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर मैंने उसे रिझाने के लिए हल्की सी छेड़छाड़ की तो बिल्कुल पिघल कर रह गई।
फिर लंबा गहरा सांस खींच कर बोली, अच्छा तो फिर सुन, मगर ठहर, मुझे शुरू से बता। पहले के का तुझे वाकई जिन चढ़ता था और तू इतने दिन बगैर बताए अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने उसे खुलकर इब्तदा से तफसील सुनाने पर उकसाया। हाँ बताती हूँ शुरू से। शौके, मैं वाकई तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो जिन्नाती दौरे महज एक ड्रामा था जो मैं जानबूझकर अपने अम्मा अब्बा को तंग करने के लिए किया करती थी, ताकि वह मेरा इशारा समझकर मेरा ब्याह तुझसे कर डाले, क्योंकि जवान लड़की को जब जिन चढ़ने लग जाए तो उसका सीधा साधा मतलब शादी ही होता है। मगर मेरे अम्मा अब्बा तो बेचारे बिल्कुल कोरे निकले। उधर तू भी बिल्कुल खटूर बन गया था और मुझे घास भी नहीं डालता था। फिर एक रोज मैं रात को अपने कमरे में बुरी तरह बेचैन होकर आहें भर रही थी तो अचानक एक साया मैंने देखा और मैं डर गई। मगर दूसरे लम्हे मेरे कानों में एक सरगोशी उभरी। कोई मुझसे कह रहा था कि अगर वो मेरे साथ चलने पर राजी हो जाए तो तेरा शौका यानी तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। मैं पहले ही तेरे लिए तड़प रही थी, इसीलिए मैंने बेखौफज़दा होकर ख्वाफज़दा होने के बावजूद हामी भर ली। उस साये से कहा कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने की खातिर आग में भी कूद सकती हूँ, तू मुझे जहाँ चाहे ले जा। मेरी हामी भरते ही उस साये ने सरगोशी में मुझसे कहा कि मैं आंखें बंद करके 3 बार ये कहूँ कि ऐ मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे काली बौली तक पहुंचा दे। और फिर मैंने इसी तरह लेटे लेटे 3 बार ऐसा ही कहा, ऐ मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे काली बौली तक पहुंचा दे। ये कहने के साथ ही मुझे गहरी नींद ने आ लिया और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक छोटे से गांव की पिगडंडी पर खड़े पाया। मैं चौंका, खुद उस वक्त तुझे हासिल करने के लिए बौली हो रही थी, इसीलिए मेरा जरा डर और खौफ पर तेरी मोहब्बत की फरदानगी तारी थी। चुनाचा मेरे कदम खुद ब खुद आगे उठने लगे। मैं जैसे किसी नादीदा कुव्वत के ज़ैरे असर तनवीमी अंदाज में आगे ही आगे बढ़ती जा रही। रास्ते में मुझे एक सफेद घोड़ी पर सवार शख्स मिला। वो अपने हुलिये से उस गांव का कोई चौधरी या नंबरदार लगता था। उसने मुझे देखा तो मेरा रास्ता रोक लिया और घोड़ी से उतरकर कड़कदार लहजे में मुझसे बोला, ओ कुड़िए, किधर जा रही है? कौन है तू? मैं अभी उसे कोई जवाब देना चाहती ही थी कि अचानक मेरे होंठ खुद ब खुद हिले और निहायत गसीली आवाज मेरे हलक से उभरी, ओए चौधरी आलम खान, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो फना हो जाएगा। उस चौधरी को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद करना चाहा, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे दोनों हाथ खुद ब खुद हरकत में आए। मैंने देखा कि मेरे दोनों बाजू लंबे होते चले गए। उन्होंने चौधरी का गला दबोच लिया। वो घोड़ी से नीचे आन गिरा और मेरे हाथों के मजबूत शिकंजे ने उसका गला दबोच लिया और उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ा जब तक कि वो तड़प तड़प कर ठंडा ठार ना हो गया। उसके मरते ही मेरे दोनों बाजू असली हालत में आ गए और एक बार फिर मेरे कदम आपे आप उठने लगे। मैं चलती हुए एक पक्के कुएं के करीब आ गई। ये एक पक्की और स्याह पत्थरों वाली मंडेरों का कुआं था। अचानक मेरे कान में वही सरगोशी उभरी, रानी मंडेर पर चढ़ जा, अंदर सीढ़ियां तुझे नजर आएंगी तो उसके जरिए नीचे उतर जाना। और मैंने ऐसा ही किया। मंडेर पर चढ़ गई। कुआं बहुत गहरा और तारीक था। पहले तो मैं नीचे उतरने से डरी, मगर फिर दिल मजबूत करके नीचे उतरने लगी। कुआं अंदर से कितना गहरा था ये मैं नहीं जानती थी। मैं बस सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरती जा रही थी। बिल आखिर काफी गहराई तक उतरने के बाद सीढ़ियां अचानक खत्म हो गई। अब मेरे चारों तरफ घटाटूप तारीकी थी और ऊपर कुएं का खुला मुंह भी छोटा सा नजर आ रहा था। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। बिल आखिर वही पुर इसरार सरगोशी एक बार फिर मेरी समातों में गूंजी, पागल लड़की, सीढ़ियों से अब नीचे कूद जा, कुएं की जमीन तेरे कदमों के नजदीक है। मैंने छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि कुएं की तह चंद फुट के गहराई में होगी, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से भयानक चीख निकल गई। मैं कुएं की तंगो तारीख और महदूद फिजा में नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही थी। मेरे दहशत के मारे होश उड़ गए और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। रानी इतना बताकर लम्हे भर को रुकी और मैं बड़े इश्तियाक और जोश के साथ उसकी यह सारी इसरार भरी रोईदाद सुन रहा था। उसके खामोश होते ही मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ? आगे बताना रानी। वो थोड़ी देर सांस लेने के बाद फिर बोलना शुरू हुई। मुझे जब होश आया तो खुद को एक वीरान खंडर में पाया। मैं एक पथरीले चबूतरे पर चित लेटी हुई थी। मेरे आसपास चांदनी फैली हुई थी। दरो दीवार से कहन साली टपक रही थी। मैं उठकर बैठ गई और हैरानों परेशान नजरों से चारों तरफ देखने लगी। फिर अचानक एक गुड़ाहट सुनाई दी।
मैंने ठठक कर आवाज की सिमत देखा तो खौफ से मेरी गगी बंद गई। वो एक रीछ जैसा जिसामत का कोई इंसान नुमा जानवर था, मगर बहुत ही भयानक सूरत की गैर इंसानी मखलूक थी, जिसका सर इंसान का मगर उसकी पेशानी पर एक आंख थी। डरो नहीं मुझसे, वो जानवर नुमा इंसान बोला। मैं उस आवाज को पहचान गई, ये वही सरगोशी थी, और मैंने जरा हिम्मत बांधी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने चारों टांगों से चलता हुआ मेरे करीब आया और फिर बोला, तू शौकत हुसैन से शादी करना चाहती है ना? हाँ हाँ, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने दिल के गहराइयों से उसे जवाब दिया। तो ठीक है, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, मगर उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तेरा शौका मेरी जान का दुश्मन बन गया है, और मैंने अपने काले इल्म से पता चलाया है कि मेरी दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती सवाए तेरे शौके के, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग की दुआ हासिल है। मैं उसकी बात पर डर सी गई, क्योंकि मैं समझी कि वो शायद खुदा न ख्वास्ता मुझे तेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, मगर वो जैसे मेरा ख्याल भांप कर बोला, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे शौके को कुछ नहीं कहूँगा। तू भी उसे कह दे कि मुझसे टक्कर लेने की कोशिश ना करे। मैं उसके सिले में तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम दोनों आपस में बड़ी धूमधाम से शादी कर सकते हो और सारी जिंदगी खुशो खुरम गुजारोगे। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई, मगर फिर मायूसी से बोली, मगर शौका तो मुझे बिल्कुल घास नहीं डालता, मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरी बात कब मानेगा भला? वो बोला, मैं तुझे एक सफूफ दूंगा, तू उसे 12 रातों तक दूध में थोड़ा थोड़ा घोल कर पिलाती रहना, वो फिर हर वक्त तेरे नाम की माला जपेगा। मैं खुश हो गई, मगर वो दूसरे लम्हे बोला, मगर वो एक सोहनी नामी लड़की के इश्क में मुब्तला होगा, क्योंकि उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ख्वाब में उसे मेरी ये नगरी का नज़ारा दिखाया है, इसलिए तुझे बड़े होशियारी से ये काम करना होगा। मैंने उससे सफूफ लिया और हामी भर ली। उसने मुझे आंख बंद करने को कहा, और फिर जब दोबारा आंख खुली तो मैं अपने गांव की पिगडंडी पर खड़ी थी। वो इतना बताकर खामोश हो गई, और मैं उसकी दास्तान सुनकर दम खुद रह गया। मुझे अब ख्याल आया कि मैंने गुज़श्ता रात जो दूध पिया था उसे पीकर मेरा दिल क्यों रानी की तरफ राग़िब हुआ था। ताहम मैं हैरत से बोला, रानी तू बहुत दिनों तक घर से बाहर रही थी, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मैं खुद हैरान थी कि इतनी थोड़ी देर के लिए इतने दिन गुजर गए। मैं समझ गया कि उसकी जादू नगरी का ही शाखसाना होगा। मैं सोचने लगा कि जगदोश की इस बद नगरी का ताल्लुक कहीं उस मनहूस गहराइयों से तो नहीं था जिसके बारे में कमाल शाह बाबा ने निशानदही की थी। इसका मतलब था कि मरदूद जगदोश पाताल में रहता था, और इस तरफ जाने का रास्ता वो काली बौली थी, जिसके जरिए रानी मनहूस गहराइयों में उतरकर उसकी बद नगरी तक पहुंची थी। ये सोचकर मेरी आंखें कामयाबी के एहसास से चमकने लगी। मुझे काफी देर तक किसी गहरी सोच में डूबे देखकर वो बोली, क्या सोचने लगा अशोके? हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं चौंक कर बोला। तो वह बड़े रसान से मेरा हाथ थाम कर बोली, शौके देख, अब तू जगदोश का पीछा छोड़ देगा ना? पता है वो हमें बहुत ढेरों सारी दौलत भी देगा। मैंने अपने गुस्से को काबू किया और बज़ाहिर खुश होकर उससे बोला, अच्छा ये बात है, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुझे इतने बड़े जादूगर से टक्कर लूं, पर वो ढेर सारी दौलत कब देगा? मैंने जानबूझकर ललचाए हुए लहजे में कहा, और वो भी खुश होकर बोली, तू सच कह रहा है ना शौके? तो फिर मुझसे शादी करेगा ना अब? हाँ क्यों नहीं, पहले बहुत सी दौलत तो लेकर आ, ताकि हम शहर जाकर अपना बड़ा सा घर बनाकर रहें। मैंने कहा, और रानी खुशी से दीवानी हो गई। मैंने उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया और खुद चारपाई पर लेट गया। अगले दिन अलग सुबह उठा तो कोई बाहर से दरवाजे को बुरी तरह बजा रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा, ताया भी जाग चुके थे। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। मैं भी जब तक सहन में पहुंच चुका था, और गांव के मुतलका थाने का हवलदार चौधरी करीम दाद खड़ा था। उसके साथ पुलिस के 4-5 अहलेकार भी मौजूद थे, और आसपास के कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। ओए बाबा जी, जरा अपनी हलाकू खान धी रानी को बाहर निकाल, हवलदार करीम दाद ने जमे हुए लहजे में ताया से कहा, और फिर उनके अकब से मुझ पर नजर पड़ते ही उसने मुझे भी झटकेदार लहजे में बुलाया, ओए माठे, तू भी जरा बाहर आना। मैं हैरानों परेशान बाहर निकला तो पुलिस वालों ने मुझे फौरन हथकड़ियां पहना दी। मारे जिल्लत और परेशानी के ताया जान बिल्कुल गंग होकर रह गए। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इतने में रानी भी चादर संभाले बाहर निकल आई और धुआंधार लहजे में हवालदार करीम दाद से बोली, क्यों वे मेरे शौके को गिरफ्तार किया है तुम लोगों ने? ओए माठी जरा होले, ये तेज तफंग में तेरे
थाने ले जाकर ही निकालूंगा ना, हवलदार ने तंदिया लहजे में कहा। फिर अपने करीब खड़े पुलिस वालों को रानी ने भी हथकड़ियां लगाने को कहा। पुलिस वाले फौरन हरकत में आए। रानी को हथकड़ी लगी तो अंदर से ताई भी सीना कुबी करती हुई बाहर आ गई, मगर पुलिस हमें जीप में बिठाकर सीधी थाने ले आई। वहां एक और भी बड़ी सी जीप लैंड क्रूजर खड़ी थी और दो ऊंचे शिमले वाले लंबे तिरंगे लहीम शहीम आदमी खड़े थे। उन्होंने काटन की कलफदार सलवार कमीज पहनी हुई थी और उनकी बगल में होलिस्टर भी झूल रहे थे। 4-5 मजीद आदमी वहां बंदूकें थामे उनके आसपास मौजूद थे। उन दोनों आदमियों के चेहरे गुस्से के मारे लाल भभूके हो रहे थे। जीप रुकी और वो हमें जीप जब नीचे उतारा गया तो वो दोनों ऊंचे शिमले वाले खरांट आदमी हमारी तरफ बढ़े। फिर मुझे और रानी की तरफ खूनख्वार नजरों से घूरते हुए हवालदार चौधरी करीमदाद से बोले, हवालदार साहब, इन दोनों को हमारे वाले कर दो, हम जाने और हमारा काम। और नहीं छोटे चौधरियों, इन दोनों से तो मैं ही निपटूंगा अच्छी तरह। और जरा इनसे ये भी पूछो तो इनको चौधरी हशमत ने कितना रुपया दिया था, जिसके लालच में इन दोनों हरामियों ने हमारे सोहने बाबा का इस बेदर्दी से कत्ल करने की जुर्रात की। दूसरा और ऊंचे शिमले वाला शख्स उबलती आंखों के साथ ही घूर कर हवालदार से बोला, और मैं और रानी हक्का बक्का खड़े उनका मुंह तके जा रहे थे। देख तो जरा कैसे बीबी के बने बने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। चलो सब अंदर, अभी तशवीश हो जाती है, हवालदार ने कहा। और फिर हम सब लोग अंदर एक बड़े कमरे में आ गए। यहाँ सामने एक बड़ी सी मेज और उसके गिर्द 2 कुर्सियां धरी थी। हवालदार करीमदाद ने बड़े एहतराम से उन दोनों चौधरी टाइप आदमियों को बैठने के लिए कहा। मैंने देखा कि अब रानी भी खासी घबराई हुई और परेशान सी नजर आ रही थी। उसकी सारी नसवानी अकड़फों हवा हो गई थी। मैं और रानी आहनी जेवर पहने मुजरिमों की तरह हैरानों परेशान खड़े, कभी हवालदार चौधरी करीमदाद का चेहरा देखते तो कभी दोनों कुर्सियों पर बुरा जमान उन दोनों ऊंचे शिमले वाले चौधरियों को तकने लगते, जो अब अपनी कुर्सियों का रुख हमारी जानब फेरे खूनख्वार नजरों से हमारी तरफ खा जाने वाले अंदाज से घूरे जा रहे थे। उन दोनों के 4 राइफल बरादर हवारी भी उनके पास ही मुस्तैद और मुदबाना खड़े थे। मैंने जरा हिम्मत करके हवालदार से पूछा, हवालदार साहब, आखिर हम दोनों को आपने किस जुर्म में? वही जुर्म के बच्चे, मुंह बंद रख अपना। अचानक एक चौधरी गुस्से से धार कर बोला और फिर अपने करीब खड़े उन चारों में से एक को कड़कदार लहजे में मुखातब करके बोला, ओए जमाले, जा जरा बाबा फकीर देने को बुला के ले आ। वो बाहर क्या अपनी बेबे के यार के साथ खड़ा है। जमाला नामी वो हवारी जी छोटे आया नु कहता हुआ हक उठाकर बाहर निकल गया। हवालदार खामोश बैठा था। ऐसे लगता था जैसे थाने में उसकी बजाय उन दोनों चौधरियों का हुक्म चलता हो। जरा ही देर गुजरी थी, वही जमाला नामी शख्स, जिसका नाम यकीनन जमाल ही था, एक मखनी सी उम्र रसीदा शख्स को दबोचे ले आया, जैसे उसने भी कोई जुर्म किया हो। उसके अंदर दाखिल होते ही दूसरे चौधरी ने उस कश्मशाक नजरों से घूर कर कड़कती आवाज में कहा, ओए फकीर देने, वो कुड़ी यही थी ना जिस नाम मुरादी ने हमारे बाबा जी का खून किया था। मैं और रानी इसकी बात पर धुल गए। फकीर दीन ने रानी की तरफ इशारा करते हुए जोश से लरदीदा आवाज में बोला, आहो जी, यही वो कुड़ी थी जिसने वड्डे चौधरी जी का खून मेरी आंखों के सामने। ये कहकर वो रो पड़ा। ओए हवालदार जी, आगे बता, आगे। पहले वाला चौधरी उसे डूबते हुए बोला तो फकीर दीन ने अपने मगरमच्छ किस्म के बहते हुए आंसुओं को पूछते हुए सिरकियां भरकर कहा, मैं इस वक्त वहां से गुजर रहा था। मैंने देखा कि यह हरामजादी वड्डे चौधरी जी का गला दबोच रही थी। मैं वड्डे चौधरी को बचाने के लिए दौड़ा तो अचानक मुझे ठुड्डा लगा और मैं गिर पड़ा। मेरा सर एक नोकीले पत्थर पर जा लगा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे दोबारा होश आया तो वड्डे चौधरी जी दुनिया से गुजर चुके थे। सुन लिया हवालदार साहब, अब आप कार्रवाई आगे बढ़ाएं। पहले वाले छोटे चौधरी ने हवालदार करीमदाद की तरफ देखकर कहा तो हवालदार करीमदाद अपने हाथों में पकड़े हुए स्याह रोल को अपने दूसरे हथियार की हथेली पर मारते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और रानी को खश्मगीन नजरों से घूरता उसके करीब आकर सरसराते हुए लहजे में बोला, रानी सुन लिया तूने? अब तूने वड्डे चौधरी आलम खान का खून क्यों किया? तेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? हवालदार करीमदाद के मुंह से ये इंकिशाफ सुनते ही मेरी जो हालत हुई सो हुई, मगर रानी तो बेचारी ज़ारों के तार रो पड़ी। मुझे अब मौजूदा हालात की कशाकशी का अंदाजा होने लगा था।
कि रानी के हाथों जगदोश ने जिस घोड़ी सवार शख्स का गला दबोचकर उसे हलाक कर डाला था वो दरअसल चौधरी आलम खान था, और ये दोनों ऊंचे शिमले वाले छोटे चौधरी मकतूल के बेटे होंगे। अब घग्गी क्यों लग गई है तेरी जुबान को, बताती क्यों नहीं? तूने चौधरी साहब जैसे बेगुनाह आदमी का खून क्यों किया? हवालदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चौधरी आलम खान को जानती भी नहीं हूँ। रानी ने बिल आकर फंसी फंसी आवाज में दादे फरियाद की तो अचानक दोनों छोटे चौधरी अपनी कुर्सी से यकदम उठ खड़े हुए और फिर हवलदार की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अपने हवारियों से कड़कदार लहजे में नखूसत से बोले, ओए चलो इस लड़की को जरा ले चलो डेरे पर, यह हवालदार साहब की बस की बात नहीं है। वो चारों चाबी भरे खिलौने की तरह हरकत में आए तो हवालदार करीम दाद को अपनी सुबकी का एहसास हुआ और तब पहली बार उसने पेशा वराना बर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए रोल को सीधा करके उन चारों हवारियों का रास्ता रोक लिया। फिर खुश के लहजे में उन दोनों चौधरियों को मुखातब करके बोला, आप दोनों कानून की राह में आने की कोशिश ना करें, ये पुलिस का काम है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे मैं ही पाया तकमील तक पहुंचाऊं। उसकी बात पर दोनों चौधरियों ने एक लम्हा के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक हवालदार करीम दाद को खशम आलूद नजरों से घूरते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला, हवालदार साहब, मामला साफ है, ये कुड़ी हमारी सबसे बड़े दुश्मन चौधरी हशमत खान के इशारे पर है और ये हमारा जाती झगड़ा है, इसे आप हमारे हवाले कर दो तो यही ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके चढ़े हुए तेवर देखकर हवालदार करीम दाद को मुतहम्मल लहजा इख्तियार करना पड़ा और उसे समझाते हुए उसके नाम से मुखातब करके बोला, चौधरी नियाज साहब, पहले हमें तो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर लेने दो, हम खुद इससे सब कुछ उगलवा लेंगे और बाद में आपके दुश्मनों पर भी हाथ डाल देंगे। चौधरी के दोनों बेटों ने पहले एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक ने हवालदार को घूरने के अंदाज में देखते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम पहले अपनी कार्रवाई निपटाओ, हम आते रहेंगे। फिर हम दोनों को मुआयना नजरों से घूरते हुए अपने हवारियों समेत चले गए। जरा ही देर बाद उनमें से एक चौधरी दोबारा लौट आया, उसे शायद कोई बात याद आ गई थी। हवालदार से वो जरा ताकीदी लहजे में बोला, एक बात का ख्याल रहे हवालदार जी, इनका कोई जमानती आए तो चुपके से हमें इतला कर देना, कहो तो अपना कोई बंदा इधर छोड़ जाए, आप बेफिक्र हो जाओ, इनकी जमानत किसी सूरत नहीं होगी। हवालदार करीम दाद ने मुतअद्दल लहजे में उसे तसल्ली दी तो वह चला गया। सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक गंभीर हो गई थी। चौधरी आलम खान का कत्ल कोई मामूली बात ना थी, ऊपर से उसके दोनों कड़ियल बेटे भी उनकी जान को आ गए थे। उस पर मस्तंद एक चश्मदीद गवाह भी फकीर नाम दीन के नाम से पैदा हो गया था, जो यकीनन झूठा था, अगरचे उसमें जरा शक ना था कि रानी के हाथों वाकई चौधरी आलम खान का खून हुआ था, मगर ये 100% उस रदील शैतान के चेले जगदोश की हरकत थी, जिसने न जाने किस तरह रानी के वजूद में समाकर चौधरी आलम खान का कत्ल किया था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर सारी बात हवालदार करीम दाद को हम सुना भी डालते तो क्या वह हमारी बात पर यकीन करता। वो देख लिया तुमने, हवालदार करीम दाद ने तहदीदी लहजे में घूर कर कहा, कानून से अगर बच भी जाओ तो चौधरी आलम खान मरहूम के ये दोनों कड़ियल बेटे नियाज खान और परवेज खान तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बता दो कि तुमने चौधरी आलम खान का कत्ल क्यों और किसके कहने पर किया। इस तरह तुम्हारा कुछ न कुछ जान छुड़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हवालदार ने पेशा वराना मकारी से कहा तो मैंने एहतजाजन मुझसे कहा, हवालदार साहब, कत्ल तो रानी ने किया है, तो फिर मुझे आपने क्यों गिरफ्तार किया? ओए, तुझे आंते जुर्म में गिरफ्तार किया है, तू अब चुप होके खड़ा हो जा, मुझे पहले रानी से पूछने दे। वो मुझे डपट कर रानी की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ कुड़िए, बता फिर। उसने अपना सवाल दोहराया तो बिल आकर मैंने ही दोबारा मुदाखलत करते हुए उससे कहा, हवालदार जी, ये बेचारी क्या बताएगी? अगर तुम हकीकत सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। हवालदार करीम दाद ने मेरी मुदाखलत पर पहले तो मुझे खशमनाक नजरों से घूरा, फिर वह जबरवा कर कराह कर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मुझसे बोला, चल फिर तू बता। मैंने फिर मुक्त सिर उसे बताया कि एक जगदोश नामी असीब रानी पर आशिक है। जब चौधरी आलम खान ने रानी का रास्ता रोका था तो उसने रानी के रूप में गुस्से में आकर उसका कत्ल कर डाला। मेरी बात पर हवालदार करीम दाद को तैश आ गया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और गुस्से से बनाकर बोला,
वो तूने क्या हमें इतना ही बेवकूफ समझ रखा है जो हम तेरी इस फिल्मी कहानी पर यकीन कर लेंगे। मैं अपने गाल को सहलाते हुए बेचारगी से बोला, मगर हवालदार साहब आप खुद सोचो जरा भला, ये कमजोर लड़की इतने बड़े चौधरी का गला किस तरह दबोच सकती है? और ये बात तो सारा ग्राही जानता है कि रानी पर वाकई किसी असीब का साया है। मेरी मदनल गुफ्तगू पर अगरचा हवालदार करीम दाद कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन वो अपनी रवायती हट दर्मी से भी मजबूर था। लिहाजा उसने मुझसे डपट कर चुप रहने को कहा और रानी को दुरुस्त लहजे में मुखातब करके बोला, तूने सुना नहीं कुड़िए, मुझे बता असल हकीकत क्या है, वरना मैं तुम दोनों को चौधरी आलम खान के दोनों बेटों के हवाले कर दूंगा, फिर वो खुद ही अपने तरीके से तुमसे उगलवा लेंगे। इस बार रानी ने भी अपनी दम खुद महर सकूत को तोड़ा और दाद फरियाद करने के अंदाज में उससे बोली, हवलदार जी, शौका बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझ पर एक जिन का साया है। हवलदार करीम ने एक सरसराती हुई हंगामी बोली, तो तुम दोनों इस तरह मुंह नहीं खोलोगे, जरा 2-4 दिन हवालात की हवा खाओ, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कहकर उसने हमें लाकअप करने का हुक्म दिया। मैं और रानी चीखते चिल्लाते रहे, मगर उस संग दिल इंसान के सर पर जूं तक ना रेंगी और हमें वो पुलिस वालों ने पकड़कर फौरन एक सीलन ज़दा से कैद खाने में डाल दिया। अब क्या होगा शौके, ये तो बड़ी मुसीबत गले पड़ गई। रानी ने रोते हुए मुझसे कहा, मैं पहले ही उस पर उधार खाए बैठा था। चिढ़कर बोला, तेरा ही कसूर है, ना तो उस जगदोश की बात मानती, ना ये मुसीबत गले पड़ती। तेरे साथ मैं भी मुफ्त में मारा गया। वो मेरा बाजू थाम कर रूहांसे लहजे में बोली, देख शौके, इसमें मेरा क्या कसूर है, तो कुछ करता क्यों नहीं? मैं क्या करूं, मैं खुद तेरे साथ कैद हूं। चौधरी आलम खान का कत्ल कोई मामूली बात तो नहीं, अब लगता है फांसी हमारा मुकद्दर होगी, मैंने पुरतविश लहजे में कहा। फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कूदे की तरह, काली बौली चौधरी आलम खान। इसका मतलब था कि वह काली बौली जिसके जरिए जगदोश की बदनगरी पहुंचा जा सकता था, वो मकतूल चौधरी आलम खान के गांव में ही थी। एक लम्हे को तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा, मगर फिर खुद को जेल में देखकर मायूस हो गया। तब मैंने हसरत से सोचा, काश में आज़ाद होता तो इस काली बाउली में जरूर उतरकर जगदोश तक पहुंच सकता था। क्या सोच रहा है शौके? रानी ने मेरी तवील और पुरसोच खामोशी पर बेचैनी से पूछा। वो गरीब ये समझ रही थी कि मैं शायद हवालात से निकलने की किसी तदबीर पर गौर कर रहा हूँ। तू चुप रह, मुझे कुछ सोचने दे, मैंने उसे टोका। इतने में मेरे ताया भी गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को लेकर आ गए, मगर हवालदार करीम दाद भी शायद मकतूल चौधरी खान के दोनों बेटों नियाज खान और परवेज खान का ज्यादा दबाव था, इसलिए उसने उनसे जान छुड़ाने की गर्ज से अदालत से रजू करने या शहर में कोई अच्छा वकील करने का मशवरा दिया। ताया जान हमसे भी हवालात में मिले। उन्होंने हम दोनों को तसल्ली देते हुए कहा कि वह शहर जाकर किसी अच्छे वकील से मिलेंगे, उसके अलावा उनके पास कहने को कुछ ना था। मैं सोच रहा था कि क्या मामला इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। शहर की जेल मुंतकिल होने और वकील की फीस की मद में अखराजात, ये सारा कुछ अकेले ताया किस तरह करेंगे बेचारे। काश मैं ही बाहर होता तो रानी के लिए कुछ न कुछ दौड़ धूप करता, मगर मैं खुद भी इसके साथ पाबंदे सलासल था। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। मैंने आज तक हवालात में रात नहीं गुजारी थी और अभी पता नहीं कितनी रातें गुजारनी पड़ी। रात की तो हालत ही वही थी। मैं उसके साथ था जो उससे हौसला मिला हुआ था, वरना तो वह आदमुई हो चुकी होती। ताया जान का यही इरादा था कि हवालदार हमें शहर की जेल मुंतकिल कर दे तो ज्यादा बेहतर था। जब ताया जान मुझसे मुलाकात करने को आए तो मैं उनके साथ पेश इमाम साहब का जवान बेटा तफैल अहमद भी था। वो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का था, तकरीबन मेरा हम उम्र ही था और शहर में तालीम हासिल करता था और वहीं अपने रिश्ते की खाला के घर में रहता था। हफ्ते हफ्ते गांव में आता। मैंने अंदाजा लगा लिया कि हवालदार करीम दाद को उसने ही दरख्वास्त देते हुए कहा था कि वह हमारा केस शहर की जेल या अदालत मुंतकिल करे, जहां सही महीनों में तफ्तीश हो सकती थी। इसकी बात भी मुझे दिल को लगी। बैल आखिर हवालात की वह पहली मनहूस रात फिर सर पे आ गई। मैं परेशान हाल से हवालात के अकड़े हुए सीलन ज़दा फर्श पर बोसीदा दीवार के साथ पैर टिकाकर बैठ गया और रानी भी नडाल सी मेरे करीब ही दीवार से लगी बैठी थी। हर सू सुनाटा छाया हुआ था। मुख सिर सा बरामद वीरान था। हल्की सी यरकान ज़दा रोशनी फैली हुई थी। 2 संतरी जो थोड़ी देर पहले सराखदार दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे,
वो भी ऊँघते हुए कहीं खिसक गए। ताया भी सर्दी से बचने के लिए मोटे गर्म खेस दे गए थे, वही मैंने और रानी ने ओढ़ रखे थे। अचानक मेरी नजर गैर इरादी तौर पर वीरान और मदम रोशनी में डूबे हुए बरामदे पर पड़ी तो मुझे वहां फर्श पर एक साया सा दिखाई दिया। पहले तो मैं यही समझा कि शायद कोई संतरी पहरेदार अपनी तसल्ली की खातिर हमें कैद जिंदा देखने के लिए आ रहा था, मगर दूसरे लम्हे मेरा मारे दहशत से आंखें फैल गईं। वो एक बालों भरा रीछनुमा झुंझरा सा जानवर था। वही मनहूस जगदोश एक बार फिर मेरे सामने था। उसका मकरू इंसानुमा एक आंख वाला चेहरा वो बड़े आराम से चलता हुआ सलाखदार दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और अपनी अलोकलोती और खौनखवार आंख से मुझे घूरने लगा। मैंने अपनी खौफजदा कैफियत पर काबू पा लिया। रानी ने भी उसे देख लिया था। गैर इरादी तौर पर उसे भी मेरी तरह खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर वो सलाख वाले दरवाजे के पास गई और उम्मीद भरे लहजे में बोली, जगदोश क्या होगा, मुझे जेल हो गई, अब तो ही हमें यहाँ से छुड़ा सकता है, क्यों? होश ठिकाने आ गए एक ही रात में, जगदोश तंजिया लहजे में बोला। ये तू क्या कह रहा है? रानी ने हैरत से कहा। मैंने तो तेरा काम काट डाला था, अब तू शौकत ने भी मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी। बकवास बंद कर अपनी, वो गुर्राहट से मुशाबा आवाज में धाड़ा। तूने मेरे साथ छल किया है, तूने शौकत खान को सारी हकीकत बता डाली। ठोहर, मैं पूछता हूँ, उसने कहा और फिर मेरी तरफ अपनी अकलौती आंख से घूर कर बोला, क्यों शौकत मियाँ, क्या तू रानी से शादी करने पर आमादा है? और अब फिर क्या मेरे रास्ते में नहीं आएगा? मैं जो अपनी जगह से टस से मिस हुए बगैर उसकी बातों पर अंदर ही अंदर खिल रहा था। नफरत मेरे लहजे में उसे घूर कर बोला, हरगिज़ नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरदूद शैतान के चेले। सुन लिया तूने रानी, उसने तेरे साथ बड़ी मकारी से सारी बात उगलवा ली और तूने नादानी में उसे मेरी बदनगरी तक पहुंचने वाली काली बौली का रास्ता भी बता दिया। अब भुगत तू ये सदा, मैं चला, जगदोश ने कहा और जाने लगा तो रानी ने उसे रोका और मिन्नत समाजत वाले अंदाज में बोली, नहीं नहीं, हमें माफ कर दे, शौका इस वक्त गुस्से में है, तो हमारे पहले यहाँ से जान छुड़ा दे, मैं शौके को समझा लूंगी। उसकी बात सुनकर जगदोश मकरू मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख कर बोला, क्यों शौके मियाँ, क्या कहता है फिर? मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में तुमसे हवालात से बाहर हो जाओगे। तुमने मेरी ताकत तो देख ली ना, मैं जब भी चाहूँ तुझे बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल सकता हूँ। बोल, छोड़ेगा मेरा पीछा? उसकी धमकी से मरऊब हुए बगैर नफरत अंगेज लहजे में होंठ चबाकर बोला, वो एक खबीस शैतान के चेले, उस मुसीबत से तो मुझे मेरा अल्लाह बचा ही लेगा, मगर इसके बाद तू जिस बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है उससे तो तुझे तेरा बाप शैतान भी नहीं बचा सकेगा। अब यहाँ से दफा हो जा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए, वो इस्तहज़ाइया लहजे में बोला, तू ठीक है, फिर तुम दोनों को अब फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकेगा, मरो यही दोनों, वो गसीले लहजे में बोला और फिर धुएं में तहलील हो गया। ये तूने क्या कर दिया शौके, उसे नाराज कर दिया तूने। तू तो कहता था कि तू चुप रह रानी, ये सारा तेरी ही वजह से हुआ है। मैंने रानी की बात काट कर बरहमी से कहा, वरना इस जगदोश जैसे शैतान को मैंने खूब मजा चिखाना था। रानी ने मेरी बात पर मुंह सुजा लिया। तूने मुझे धोखा दिया शौके, क्या वो सब फरेब था जो तूने मुझसे किया था? अब तक वो फरेब नहीं था, मगर जगदोश तक पहुंचने के लिए ये सब जरूरी था, मैंने कहा और फिर कदरे नरमी से उसे समझाने की गरज से बोला, देख रानी, मेरी एक बात सुन, तू पागल मत बन। देख लिया तूने जगदोश के हाथों अपने उस पागलपन की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई और मुझे भी फंसा दिया। नहीं, जगदोश तेरा फरेब जान गया था, इसने इसीलिए तेरे साथ मुझे भी सजा दे डाली। रानी ने गुस्से से कहा। वो उल्टा मुझे ही मोर्द अल्जाम ठहरा रही थी। मैं उसकी गलतफहमी दूर करने की गर्ज से दोबारा मुलायमत अमीज लहजे में बोला, रानी, जगदोश एक शैतान है, मुझे हर कीमत पर उसे खत्म करना है। इस पाक धरती को एक गंदे वजूद से पाक करना है, ये अल्लाह का भी हुक्म है। और मेरी तरफ तंजिया नजरों से देखकर बड़ी नहूसत से बोली, तू जगदोश को खत्म करना चाहता है या उस कड़ीकुड़ी सोहनी को हासिल करना चाहता है जिसे तू ख्वाबों में देखा करता था? मैं हक्का बक्का उसका चेहरा तकने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि रानी जगदोश से गठजोड़ कर चुकी थी और उसने ही उसे सारी तफसीर बता डाली, मगर मैं भी चोर बनने की बजाय साफ साफ लहजे में बोला, हाँ, ये भी सही है कि एक शैतान के चुंगल से एक बेगुनाह और मासूम दुखियारी लड़की को छुड़ाना चाहता हूँ ताकि बाद में उससे शादी कर सके। क्यों, यही बात है ना? रानी का लहजा लम्हा बेलहमा जहरीला होने लगा। हाँ, मैं सोहनी से शादी करना चाहता हूँ, मैंने साफ गोई से कहा।
मुझे अब इसकी परवाह ना थी कि जो मैं उससे उगलवाना चाहता था वो मैं उगलवा चुका था, मगर मैं रानी को राह रास्त पर लाना चाहता था। मेरी बात पर वो अंगारा आंखों से मेरी तरफ घूरते हुए बोली, तू फिर मुझे तूने क्यों प्यार का फरेब दिया? बोल। उसके तेवरियों पर अचानक बल पड़ने लगे। चेहरा गुस्से और तदरीर के एहसास से सुर्ख होने लगा। ये सब मैंने जगदोश तक पहुंचने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि तू भी उस हैरामी शैतानी की चेली बनने लगी है तो तुझे राह रास्त पर लाने के लिए ये सब जरूरी था। मैंने गहरी मतानत और साफ गोई से कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दगाबाज, फरेबी। रानी का पारा जैसे लबरेज हो गया। वो जख्मी शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। मैंने अपनी जगह बैठे बैठाने पर बड़े आराम से अपने दोनों हाथ से उसे मरोड़ तरोड़ कर एक तरफ धकेल दिया। वो हाँफने लगी और रोती भी जा रही थी। उसकी अकड़ फूंक जाती रही। फिर अचानक ना जाने उसे क्या हुआ, वो उखड़े हुए सीमेंट वाले सीलन ददा फर्श पर आधे कमल का आसन बनाए बैठ गई। फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने आंखें मूंदे बेआवाज बुलंद कहा, ऐ महनूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। क्या तू उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ नहीं कर सकता? मैं वादा करती हूँ कि आज से तेरा दुश्मन शौकत हुसैन मेरा भी दुश्मन है और मैं उसे तुझ तक कभी भी पहुंचने नहीं दूंगी। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं पहले तो उसके खतरनाक और नापाक अज़ाइम जानकर शशदर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने इस तरफ देखकर नफरत से अपने होंठ सकेड़े। तब फिर अचानक मैंने देखा कि दीवार पर एक साया सा उभरने लगा, मगर वो साया एक सर का था जिसके मनहूस और डरावने चेहरे के नकूश वाज़े होने लगे। वो एक आंख वाले जगदोश का चेहरा था जिसकी बदहैबत होंठों पे मकरूह मुस्कुराहट रखता थी। उसने रानी को पुकारा। रानी ने यकदम आंखें खोल दी। फिर दीवार पर जगदोश के मकरूह चेहरे को देखते ही कुछ ही तनहाल हो गई और बेकाबू होकर बोली, जगदोश, जगदोश, क्या तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ, हमने मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह ने तुम्हें माफ कर दिया, मगर अब हम तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना। जगदोश ने उसे अपना वादा याद दिलाया तो रानी मेरी तरफ एक नफरत भरी निगाह डालकर उससे दांत पीसते हुए बोली, हाँ ऐ महनूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे अब उस शख्स से नफरत हो गई है। ये सही है कि पहले मैं इसकी इश्क में दीवानी हो रही थी, मगर अब इसे भी पता चल जाएगा कि जो औरत किसी को टूट कर चाहती है वो दिल टूटने पर उससे ज्यादा नफरत भी करना जानती है। मगर जगदोश, मैं एक कमजोर लड़की भी तो हूँ और यहाँ कैद हूँ। मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तेरे पर मुकदमा चलेगा तो तू साफ साफ सारा इल्जाम शौकत के सर थोप देना, आगे मेरा काम है। मैं दम बखुद सा ये मंजर उन दोनों रजीलों की आपस में गुफ्तगू सुन रहा था। वो मजदूर रानी को बहका रहा था और रानी मुझसे इंतकाम लेने की खातिर बहक रही थी। यह मेरे लिए खतरनाक सूरत हाल साबित हो सकती थी। रानी अब जगदोश की चेली बनकर मेरी राह में रुकावटें डालने पर रजामंद हो गई थी। जगदोश की मकरूह सूरत गायब हो चुकी थी। रानी अब मुझे अंदाना नजरों से घूरे जा रही थी। अगले दिन सुबह ही रानी ने शोर डाल दिया कि उसे इस वक्त हवालदार साहब के सामने पेश किया जाए। वो उसे बयान देना चाहती है। थाने वाले यही समझ रहे थे कि एक ही रात हवालात में गुजारने से रानी के होश ठिकाने आ गए थे और अब वो सच बोलने पर राजी हो गई थी, मगर अच्छी तरह मैं जानता था कि वो सच क्या था। नाचार मुझे भी रानी के साथ ही हवालदार करीमदाद के सामने पेश किया गया। वो अपनी मेज के पीछे बिछी ऊंची पुष्टगाह वाली कुर्सी पर बड़े कुड़ के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट रखसा थी। हस्बे मामूल काला स्याह रोल उसके हाथों में था, जिसमें बड़े ड्रामाई अंदाज में बार बार अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारे जा रहा था। उसकी दोनों टांगे मेज पर धरी थी और उसका रुख हमारी जानब था। मुझे उसकी इस बेहूदगी पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं अंदर ही अंदर तलमलाने के सिवा और क्या कर सकता था। बोल रानी, अब तू क्या कहना चाहती है? उसने बारी बारी हम दोनों के चेहरों की तरफ देख कर सरसराते हुए लहजे में कहा तो रानी बोली, चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने इस चौके के कहने पर चौधरी आलम खान का खून किया था। रानी के ये अल्फाज बम की तरह मेरे सर पर फटे थे। ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हवालदार करीमदाद फातहाना अंदाज में गोया किलकारी मारते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है साहब। मैं भला इतने वडेरे चौधरी आलम खान का क्यों खून करूंगा? मैं रानी की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए हवालदार से बोला, कितने पैसे लिए थे तूने चौधरी हशमत अली खान से? हवालदार करीमदाद मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए सनसी के लहजे में बोला,
मेरे वजूद में चूंटियां सी दौड़ने लगी। वो उठकर खड़ा हो गया और भरमाती हुई नजरों से मेरी तरफ घूरते हुए चंद कदम बढ़ा। हवालदार साहब, मेरी बात का यकीन करें, ये कमीनी झूठ बोल रही है। मैं तो चौधरी हशमत अली को जानता भी नहीं हूँ, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। ये कमीनी उस शैतान जगदोश के कहने पर ऐसा कह रही है। ये कमीनी इस शैतान जगदोश के कहने पर ऐसा कह रही है। ओए, ये जगदोश क्या बला है? हवलदार ने इस्तहज़ाइया लहजे में मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। वो मेरी बात को कहके में उड़ाते हुए बोला, ओए, तूने जिन्नों भूतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब दोबारा ये फर्जी कहानी सुनाई तो तेरी इमेज निकाल दूंगा। अभी तूने इतना ही कहा था कि अचानक मकतूल चौधरी आलम खान के दोनों बेटे चौधरी नियाज खान और चौधरी परवेज खान भी आन दम के। उनकी हमरा एक मेरी उम्र का भी नौजवान था। उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग थी। बाकी नियाज खान 35 और परवेज खान 23 साल पेटे में थे। उनके साथ 3-4 असला बरादर हवारी भी थे। क्यों जी हवालदार साहब, इन्होंने ज़बान खोली कि नहीं? चौधरी नियाज खान ने अंदर कमरे में दाखिल होते ही पूछा। आहो जी काकी, तूने ज़बान खोल दी है। मैंने कहा था ना कि एक रात हवालदार में गुजारेंगे तो आप ही होश ठिकाने आ जाएंगे। हवलदार करमदाद ने फख्र से अपना सीना फुलाते हुए उनसे कहा और उनके सामने रानी का झूठा बयान दोहरा दिया। मुझे तो पहले ही शक है कि ये दोनों हमारे दुश्मन चौधरी हशमत अली खान से रले मिले हुए हैं। चौधरी नियाज हमारी तरफ गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए बोला, अब आप इन दोनों के खिलाफ पर्चा कटवा कर सबसे पहले चौधरी हशमत अली खान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी करें। आप लोग मेरी बात तो सुन लें। चौधरी साहब, इस बार मैंने नियाज मोहम्मद परवेज को मुखातब करते हुए कहा, रानी झूठ बोल रही है। ये ना तो चौधरी हशमत खान अली खान से मिली हुई है और ना ही इसने आपके बुजुर्गवार वालिद साहब का खून किया है। रानी दरअसल एक शैतान के कहने पर यह सब कुछ कर रही है जिसका नाम जगदोश है, और जगदोश ने ही रानी को बहरूप में ये खून किया है। मेरी बात पर वह दोनों हत्थे से उखड़ गए। गुस्से से दांत नकोसते हुए मुझे मारने को लपके, मगर हवालदार करीम दाद अचानक मेरे और उनके दरमियान में आ गया। नहीं नहीं चौधरियों, इस तरह तो ये इसका कानूनी पॉइंट बन जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, अब ये लोग फांसी के फंदे से नहीं बढ़ सकते। हवालदार साहब, इन दोनों को तो एक तरफ रखो। असली मुजरम तो चौधरी हशमत अली खान है, उसे फांसी चढ़ना चाहिए। चौधरी परवेज खान नाक मुंह चढ़ा कर हवालदार से बोला। मैंने देखा कि हवालदार करीम दाद खासा परेशान नजर आ रहा था। उसकी पेशानी पर सलवटें उभरी हुई थीं। साफ नजर आ रहा था कि वह चौधरी हशमत अली खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए कतरा रहा था, लेकिन चौका रानी ने खुल्लम खुल्ला झूठा बयान दिया था, इसलिए वो खासी मुश्किल में फंस गया। अब आप क्या सोच रहे हो हवालदार जी? वक़्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? चलो चौधरी हशमत अली को गिरफ्तार करें। छोटे चौधरी नियाज खान ने हवलदार को गोया अपना करकराते लहजे से टहोका दिया तो वह गहरी पुरतफक्री संस्कारी करते हुए बोला, देखो, सिर्फ कुली रानी के इस बयान से हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ शौका भी है जो सेहते जुर्म से सिरे से इनकारी है। बात तो तब थी कि जब शौका भी ऐसा बयान देता, बल्कि ये तो यहाँ तक भी कह रहा है कि रानी का ये बयान झूठा है। हवालदार, पता नहीं कौन सी हमें पटियां पढ़ा रहे हो। रानी इकबाल जुर्म कर चुकी है, अब क्या मसला है? छोटे चौधरी नियाज ने सख्त लहजे में उससे कहा तो हवालदार उसे समझाते हुए बोला, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि चौधरी हशमत अली के खान के खिलाफ मजबूत केस बने ताकि ना उसकी जमानत हो सके ना रहाई। अगर ये बदबख्त शौका भी रास्त पर आ जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं। इस बार हवालदार करीम दाद की सराहत अंगेज गुफ्तगू ने उन दोनों छोटे चौधरियों को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ खड़े तीसरे और मेरी हम उम्र नौजवान ने भी हवालदार की बात तायद करते हुए उन्हें समझाया कि ये मुझे जरा समझदार और सुलझा हुआ शख्स दिखाई दे रहा था और अब तक बिल्कुल खामोशी से सारी होने वाली धुआंधार गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। नौजवान मुझे इन्हीं दोनों छोटे चौधरियों का कोई करीबी रिश्तेदार ही लगता था। बहरतौर तब फिर छोटे चौधरी परवेज ने मेरी जानब पेश कदमी की और संजीदा लहजे में मकारी से बोला, ओए, मेरी बात गौर से सुन। हमारी दुश्मनी बीच की आदमियों से नहीं होती, क्योंकि वह हमारी सिता के नहीं होते। तुमने चौधरी हशमत अली खान के कहने पर अगर ये कत्ल किया है तो सच सच अपना बयान लिखा दे। हमारी दुश्मनी तो सिर्फ चौधरी हशमत अली खान से है। तू एक बार अदालत में ये बयान दे तो बस, तो फिर तू आज़ाद और चौधरी हशमत अली खान अंदर। मैं उसकी चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा था, मगर कत्ल तो मैंने सिरे से ही किया ही नहीं था। मेरी हालत वाकई रोने जैसी थी।
बदबख्त रानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मारे बेबसी से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने रूहांसे लहजे में रानी से कहा, रानी ये तो मुझसे अच्छा इश्क कर रही है, अपने चाहने वालों को यूं फंसाते हैं। मगर रानी बेदस्तूर संगे दिल बनी खड़ी रही। वो मुझसे मोहब्बत करते करते यकदम नफरत करने लगी थी और उसकी नफरत की अहम वजह रकाबत थी। औरत कोई भी हो, रकाबत की आग में अपना सब कुछ जला बैठती है, हत्ता कि अपनी जान भी। दोनों चौधरी गुस्से से खड़े मेरी तरफ शोला बार नजरों से घूर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि उधर ही मेरी तिक्का बोटी काट डालते। अलबत्ता वो भले मानस नौजवान मेरी तरफ सोचती हुई नजरों से तके जा रहा था। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा और मेरा नाम पूछा। शौकत हुसैन नाम है जी मेरा, शौका कहते हैं सब मुझे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, किसके बेटे हो? वो जी चौधरी अकबर खान का। क्या करते हैं वो? उनकी गांव में खाद और बारदाने की दुकान है। चौधरी अशमन खान को जानते हो? ओ जी रब दी सौ, मैंने तो ये नाम भी इधर ही थाने में आकर सुना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चौधरी आलम खान कौन है, किस गांव के हैं। मैंने इतना कहकर जरा उम्मीद भरे लहजे में उस भले मानस नौजवान से कहा, आप जी मेरे बारे में पूरे गांव से ये सब पूछ सकते हो कि मैं कैसा लड़का हूँ। वो नौजवान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हारा कहना है कि रानी पर जिन का साया है। हाँ जी, ये बात तो पूरे गांव को भी मालूम है। रानी पर आए दिन जिन के दौरे पड़ते रहते हैं। मैं यकदम आस भरे लहजे में बोला, और एक साधु भी रानी का जिन निकालने आया था और वो भी उस जिन के हाथों मारा गया। ये बात तो खुद हवालदार साहब को भी मालूम है। वो भला मानस नौजवान हवालदार की तरफ देख कर बोला, क्या ये सही कह रहा है हवालदार साहब? ओए जी, ये सब ड्रामेबाजी है इसकी।